Hello, everyone. So, the first question that has been provided to you is this one. Mark of an educated mind is to be able to entertain a thought without accepting it. Comment. Okay? Remember that the purpose of this video session or the purpose of these videos is to tell you exactly the ways to unlock a question. There are other elements which has already been provided to you. That is the evaluated script with feedback. Along with that, you were given the model answer, the handwritten model answer. The purpose of this session is to tell you how to unlock it. What should come in our mind when we discuss this sort of question or any question for that matter. All right? So, ये क्वेश्चन क्या कहता है? मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड. देखो, व्हाट आर द pivotal thing? Educated mind is to be able to entertain a thought without accepting it. Got it? This is a quotation based question, and you have seen in the mains examination that UPSC, every year UPSC asks minimum 2 quotation based question, and sometimes they have even went up to asking 4 type of question. 4 questions related to quotations. Now, remember one thing, this sort of question is one of the toughest question. इस तरह का क्वेश्चन जो quotation वाला क्वेश्चन रहता है, वो बहुत tough question माना जाता है. Now the question is why? Because the quotation is abstract. And we have to draw certain inference out of it. We have to correlate it with the syllabus, then we have to present the answer. This is one reason. The abstract nature of this quotation based question is the reason why we think that this sort of question are generally tough. Okay? But we will try to devise a technique through which you can easily solve this quotation based questions. Okay? Now, so the most important is educated mind. Now, what is this educated mind? How to think about that? That's a different matter. We will talk about it later on. But here, look at the entire sentence. Mark of an educated mind, कोई mind है जो educated है, is to be able to entertain a thought. मतलब वो जो दिमाग है, educated mind है, वो entertain करता है. मतलब कि वो चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, without accepting it. Now you said something, I don't agree with you, but still I will not stop you from saying whatever you say. I'll listen to your point, but I have my own way of thinking, okay? This is the characteristic of educated mind. So the first step, remember, the first step towards the understanding, towards unlocking the question is your understanding the entire context. सबसे पहले context समझना जरूरी है. Context समझ गए कि एक ऐसा दिमाग होगा, क्या कहता है? एक ऐसा दिमाग होगा, there will be a mind like that, like, which will entertain a thought. वो सुनेगा thought को. जरूरी नहीं है कि उसको accept करे वो. ठीक है? ये है इसका ये. तो सबसे पहले याद रखिए, you know that there are generally people say that there are one way to write an answer, that is introduction, body, and conclusion. Fine? These are the 3 things that in general people say, and it is correct as well. There is no dispute about it. All right? कुछ दिक्कत नहीं है. तो अब सबसे पहले इस तरह का चीज जो है, उसका इंट्रोडक्शन बहुत टफ हो जाता है. How to introduce yourself? When you start writing, whenever you come across this sort of question, आपका हाथ ही नहीं चलता है. So many things will keep up ramping up your mind. You will not be able to think. तो इंट्रोडक्शन जो है वो एक चैलेंजिंग होता है. तो मैं आपको बहुत आसान बताता हूं. इंट्रोडक्शन जो है उसको 2 तरह से लिखिए. ठीक है? आमतौर पे बोल रहा हूं. It will not be valid to all the question, but yes, it will be valid for majority of the question. Fine? One is definitional way, other is contextual way. Okay? Definitional way, when we say definitional way, we try to define something. तो आप define तो कोई एक sentence को define नहीं कर सकते ना आप. It will be a tough job. तो आप क्या define करेंगे?
पिक द मोस्ट पाइवोटल वर्ड इन द कोटेशन। सबसे जो पाइवोटल वर्ड है उसको पिक कर लो। हमने पहले क्या बोला, ये जो है सबसे पाइवोटल वर्ड है। एडुकेटेड माइंड इज द मोस्ट पाइवोटल वर्ड। यू पिक इट, ले लो और उसको डिफाइन कर दो। जो भी आपको समझ में आए, ध्यान दीजिएगा, जो भी समझ में आए वो आप लिख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एडुकेटेड माइंड क्या है, वट एवर, देखो वट एवर इज द डेफिनेशन यू राइट इट डाउन, देन कम टू बॉडी, देन कम टू कंक्लूजन। फाइन, तो बॉडी कंक्लूजन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स द क्वेश्चन इज सच, ध्यान देना इस वर्ड को, समटाइम्स द क्वेश्चन इज सच दैट वी कैन नॉट पिक अप एनी सिंगुलर पाइवोटल वर्ड। कोई वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोटेशन है, एन आई टू एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, वेरी फेमस कोटेशन बाय गांधी। बट इसमें क्या पाइवोटल, आई लोगे, एक वर्ड आई है उसमें, ठीक है, ब्लाइंड एक वर्ड है, ना तुम ब्लाइंड से स्टार्ट कर सकते हो ना तुम आई से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो डेफिनेशनल वे है वो तो खत्म हो गया, आप उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। तब तो दूसरा तरीका भी तो होना चाहिए ना अपने पास लिखने के लिए आंसर। व्हाट वुड बी द सेकंड वे, कॉन्टेक्स्ट। वो जो कॉन्टेक्स्ट जो बोलना चाहता है, जस्ट रिमेंबर whatever this particular statement, this particular quotation wants to convey to you, you understand the context, just verbatim write in your own words the context. Introduction बहुत अच्छा हो जाएगा। Remember, इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आंसर अच्छा नहीं कहलाता है। इफ योर स्टार्ट इज वेरी पुअर, remember the examiner might lose interest. So introduction is very important. This is the two way through which you can go about the introduction. Fine. तो हमने याद रखिए सबसे पहले क्या होता है, structure of the answer. Second चीज, content of the answer. तो स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज योर दिस, बट हाउ टू ब्रेक इट डाउन, दैट्स अ केस, दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ अनलॉकिंग द क्वेश्चन। तो अगर इसको हमको अनलॉक करना होगा तो पहले तो हमने डिफाइन कर दिया, और अच्छा एक एडुकेटेड माइंड के बारे में बात किया है, तो डेफिनेशनल वे से चलेंगे, ट्राई एंड डिफाइन एडुकेटेड माइंड। समटाइम्स इफ यू आर लकी, देन दैट कोटेशन you would be knowing who has actually said that. ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन was given by Aristotle. तो अगर वो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि एरिस्टोटल ने बोला तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उससे मतलब नहीं है। दिस इज नॉट ऑप्शनल पेपर, दिस इज जनरल स्टडीज पेपर। वट एवर यू इन्फरेंस यू ड्रॉ आउट ऑफ द स्टेटमेंट, दैट विल बी द valid statement, that will be the valid claim, that will be the valid answer. Okay, argument सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें नहीं पता है, मान लो एरिस्टोटल ने बोला, लेकिन हम इसका मीनिंग तो समझ ही रहे, ठीक है। तो देखो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट जब आता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इसका एक मीनिंग है, क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है टॉलरेंस। दिस क्वेश्चन इज अबाउट टॉलरेंस, दिस क्वेश्चन इज अबाउट टॉलरेंस। अब क्यों मैं कह रहा हूं टॉलरेंस है, मान लो इसको पढ़ोगे तो उसी से पता चल जाएगा कि ठीक है टॉलरेंस क्या है। दैट इफ आई एम ए टॉलरेंट पर्सन, यू वुड से समथिंग टू मी, आई माइट नॉट बी कन्विंस्ड, आई माइट नॉट अग्री विथ योर स्टेटमेंट, बट आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। यू ऑल्सो हैव द राइट टू फ्रीडम स्पीच। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका बात सुन रहा हूं तो एंटरटेन कर रहा हूं कि नहीं, तो वही एडुकेटेड माइंड कंसल्टेशन में बिलीव करता है, ठीक है। तो अब एक ये सब चीज हम लोग को क्लियर हो रहा है कि क्या क्या चीज होना चाहिए। तो अब अगर लेट मी इरेज इट, तो दो तीन चीज क्लियर हो गया अपने को। क्या क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन इज क्लियर, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका बेसिक थीम क्या है, टॉलरेंस है, दो चीज क्लियर हो गया, फाइन। अनलॉक कैसे कर रहे हैं वो देखिए। थर्ड थिंग कि अब इसको बिल्डअप कैसे करें। रिमेंबर
एक तो हो गया एडुकेटेड माइंड, एक ये भी होगा कि अनएडुकेटेड माइंड। ये भी तो सवाल हो सकता है कि एक अनएडुकेटेड माइंड हो। अनएडुकेटेड माइंड इसका उल्टा होगा। मार्क ऑफ एन अनएडुकेटेड माइंड इज टू not to entertain a thought and not to accept it even। उल्टा ही होगा ना। तो अब हम अनएडुकेटेड कौन होगा और एडुकेटेड कौन होगा, इसका सवाल है। अब एडुकेटेड कौन है? जो टॉलरेंट है। और अनएडुकेटेड कौन होगा? जो इनटॉलरेंट है। फॉर एग्जाम्पल Mussolini, for example, Hitler, they were highly educated people. Okay? Highly educated बोल रहे, they were highly actually literate people. But they had no tolerance. Tolerance उनमें zero था. तो what happened, you know? गांधी जी लिटरेट भी थे और टॉलरेंट भी थे। तो क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे आपने देखा कि हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखे एग्जाम्पल्स, वो चीज क्या करेंगे, हम कोट करेंगे यहां पे। समझ में आ रहा है? तो इंट्रोडक्शन और हमको थीम मिल गया कि टॉलरेंस पे है। तो अब एक चीज है कि हमने वर्ड यूज किया कि गांधी इज लिटरेट एंड प्लस एडुकेटेड थे। हिटलर वॉज लिटरेट बट नॉट एडुकेटेड। ये चीज हमको क्लियर हुआ। तो मतलब कि सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, वी विल टॉक अबाउट एडुकेटेड माइंड। सेकेंड स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एडुकेटेड माइंड एंड लिटरेट माइंड। एडुकेटेड माइंड, लिटरेट माइंड मे नॉट नेसेसरीली बी कॉल्ड एज एडुकेटेड माइंड। ओके, अब आप जो एडुकेटेड माइंड तो बोल रहे हो, डेफिनेशन भी एडुकेटेड माइंड दिया, लेकिन उसका फीचर्स क्या होता है वो भी अगर लिख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर इसको हम लिखते हैं आंसर के रूप में, तो इट वुड बी लाइक, बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं अब। सबसे पहले एडुकेटेड माइंड को हमने डिफाइन कर दिया, जो है आपका इंट्रोडक्शन। अब जब बॉडी में आएंगे, फाइन, तो एडुकेटेड माइंड और जो लिटरेट, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2। अब पैरा 3 में क्या लिख देंगे, फीचर्स लिख सकते हो, ठीक है। और पैरा 4 इफ यू वांट टू राइट, तो उसको एविडेंस दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। और पैरा 5 जो होगा वो कंक्लूजन होगा। अब याद रखिए, द मोमेंट यू सी द वर्ड कमेंट, द मोमेंट यू सी द वर्ड कमेंट, remember one thing, this is a universal rule as far as answer writing is concerned, and the rule is that you got to mention something. Mention what? Your own opinion. आपको अपना ओपिनियन लिखना पड़ेगा, चाहे एक समराइज करके एक ओपिनियन दे दीजिए, और other way of writing conclusion in this sort of question is writing conclusion in futuristic sense, थोड़ा futuristic outlook भी आप दे सकते if you want. Okay, and remember one more thing, not every question requires conclusion, but whenever you see the word comment, you got to write conclusion, otherwise 1 marks is gone at least from whatever you are deserving, not from out of 10 or out of 12.5. okay, आपका चला जाएगा। तो लिखना जरूरी है। तो हमने इससे क्या समझा, सबसे स्टेप नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरलाइन थिंग्स, bring the most pivotal word, define it. Then the next step will be to build the body. Body building means argument building. ठीक है, एडुकेटेड माइंड लिखा है तो उसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कौन सा माइंड को एडुकेटेड कह रहे हैं, कौन सा माइंड को अनएडुकेटेड कह रहे हैं आप। उसके बाद आपने फीचर्स दिया कि और थोड़ा विस्तार किया, उसको डेवलप किया। देन फीचर्स दे दोगे तो ऑटोमेटिकली ये सिंबलाइज हो जाएगा that I understand educated mind, how they function, and why they
देखो कुछ कुछ चीज होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब एलिमेंट होता है आंसर का. Why the educated mind is capable of entertaining a thought. Or last में conclusion, why it is so much in need. Today is a time of crisis. Today is a time of globalization, multiculturalism, pluralism. So much world is moving so fast. ये सब problem है. तो we need tolerant behavior. We need educated mind. That should be your conclusion. ठीक है? तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर. All right?